Hi guys, this is Riya Deshpal and you are back on my channel Crux of English, and today I'm going to teach you figures of speech. I have already taught this topic in a previous video, but I was asked by certain people to repeat the topic with more elaborate examples. So I'm going to do that, but if you want to watch the introduction of figures of speech, I would advise you to go on my channel and watch the previous video. But in this video I am going to explain to you every figure of speech in an elaborate way with more examples. So let's just get on with it. So I am taking simile and metaphor first. I have put them in one frame because they are a lot alike to each other. इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिल जाएगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बिकॉज ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे के. सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? जो एक लौता इनमें दोनों में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सिमिली में हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. वन थिंग इज लाइक द अदर एंड हेयर गोज द सेम, वन थिंग इज लाइक द अदर. बट हम सिमिली में क्या करते हैं, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं हम सिमिली में वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक और एज. ये जो दो वर्ड्स होते हैं, जब ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो हम उसको सिमिली कहते हैं. लेकिन मेटाफोर में ऐसे कोई भी वर्ड्स कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं किए जाते. जो कंपैरिजन मेटाफोर में होता है इट्स वेरी स्ट्रेट. दोनों आप चीज़ों को या दोनों यू पुट बोथ द थिंग्स टुगेदर एंड यू कंपेयर देम इन द सेम सेंटेंस, बट यू डोंट यूज़ द वर्ड्स फॉर कंपैरिजन. So let's see the examples to make it more clear. Light as a feather. Light as a feather. So what a feather is? पंख. So जब कोई चीज़ पंख की तरह बहुत हल्की है तो हमने जो चीज़ है उसका पंख से कंपैरिजन किया है. It is as light as feather. That means it's very light. Now this is a simile because we have used the word as to compare both the things. Okay, now the next one, fights like cats on dogs. आपने घर में सुना होगा, मम्मी पापा भी कहते हैं कि क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो. It's the same thing when two people are fighting like cats and dogs. We all know cats and dogs are arch enemies of each other. So when two people fight like cats and dogs, this is the comparison. So it could be said like they are fighting, but in a beautified version you would say fights like cats and dogs. Now we have used the word like here, which makes it a simile. Now the third example, as like as two peas in a pod. Now this one is a bit typical, so let me explain to you what it actually means. आपने एक फली देखी होगी, मटर की फली. उसमें जब आप दो मटर के दानों को देखते हैं तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. तो यहाँ उसका वही मतलब है कि when two things or two people are just so similar that they could be identical to each other, that's when we say two peas in a pod. Now we have used the word as two times to compare this thing or a person. You can put any name or a thing here which would be the comparison. Okay, so we have used the word as twice, which makes it a simile. Now the next one, as brave as a lion. हम सबको पता है कि लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. तो जो किंग है जंगल का, ही इज सपोज टू बी रियली रियली ब्रेव. सो वी कुड जस्ट से इन कंपैरिजन दैट ही इज वेरी ब्रेव. इट वुड मीन द सेम थिंग. सो एज ब्रेव एज अ lion. Now we have used the word twice as, which makes it a simile.
नाउ द लास्ट वन, एज कोल्ड एज आइस। आइस हम सबको पता है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आइस का जो टेम्परेचर होता है दैट इज सपोज टू बी 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी वेरी लो। सो इट, कोई चीज़ जब इतनी ठंडी है जितनी आइस ठंडी होती है, सो दैट मेक्स इट अ सिमिली because there is a comparison of the thing or the person who is like ice. Now we use the word as, which makes it a simile again. So when we use the words like here, or as, like here, it's for the comparison between two things or two people, it's a simile. Now let's go to the metaphor. So what is a metaphor? Metaphor is a figure of speech that is used for comparison between two things or two people, but in this scenario we don't use the words for comparison. So let's see a few examples that will make it more clear to you. All words are stage and all men and women merely players. It's a very famous line from a Shakespeare's play. So let's just see how there's a metaphor. यहाँ शेक्सपियर ने सारे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर किया है, लेकिन यहाँ पे हमने मेटाफर को कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे इज का यूज हुआ है, ना कि लाइक और एज का। यहाँ एक थिंग है और दूसरी थिंग है और दोनों में कंपैरिजन है, लेकिन हमने कोई वर्ड नहीं यूज किया है जैसे लाइक और एज। And all men and women merely players. All men and women merely players. So हमने players से, players कौन होते हैं, जो कि एक प्ले में एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे players का वो मतलब है। So players को हमने men and women से कंपेयर किया है। Men and women are just like players in a play. So यहाँ शेक्सपियर क्या कहना चाह रहा है कि सारा वर्ल्ड is like a stage और उस पे men and women they just playing their roles. Okay, so this is a metaphor again. Now the next one, you are my sunshine. Now no one can actually be someone's sunshine because sunshine comes from the sun actually. So तुम मेरे लिए सनशाइन की तरह हो। What does that mean is कि आप मुझे एक तरह की लाइट प्रोवाइड कराते हो, मेरी लाइफ में ब्राइटनेस लाते हो। सो यू आर माई सनशाइन। नाउ वी हैव यूज्ड द वर्ड आर टू कंपेयर अ पर्सन टू द सनशाइन, सो दैट्स अ मेटाफर। नेक्स्ट वन, बिल इज एन अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड, नाउ व्हाट डज अर्ली बर्ड मीन? आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हो तो जो चिड़िया होती हैं वो चहचहा रही होती है सुबह सुबह। सो यहाँ पे वही मतलब है कि एक इंसान है बिल, उसको हमने जो चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती हैं उनसे कंपेयर किया है इज का यूज करके। सो बिल इज एन अर्ली बर्ड, दिस इज व्हाट मेक्स इट अ मेटाफर। नेक्स्ट वन, इट इज ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। नाउ अगेन दिस इज अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। इट इज ईस्ट, ये ईस्ट है और जूलियट सन है। Now Juliet cannot be the sun, right? Because sun is the sun. So Juliet को sun से कंपेयर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे is का यूज किया गया है and that's why it's a metaphor. Oh Lord, you are our father, we are the clay and you are potter. Now let's see. Oh Lord, you are our father. हे भगवान, आप हमारे पिता समान हैं। वी आर दी क्ले, हम मिट्टी हैं और आपने हमें बनाया है। अब हमने यहाँ पे लॉर्ड को फादर से कंपेयर किया, किसका यूज करके? यू का। जो ह्यूमन बींग्स है जिसे भगवान ने बनाया है उसको क्ले से कंपेयर किया है आर का यूज करके। थर्ड मेटाफर, हमने यहाँ अपने भगवान को पोटर से कंपेयर किया है। पोटर कौन होता है? जो हमारे लिए पॉट्स बना के देता है। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान आपने हमें बनाया है, जैसे भी बनाया है, आप हमारे पिता हो।
So this is the difference between simile and metaphor. In simile, we use like or as for comparison between two things, and in metaphor, we don't use any word for comparison. That's it. Now let's move on to the next one. So this is the next one, hyperbole. What is hyperbole? Hyperbole is a sort of statement that we make which provides us with an emotional response. It is an exaggerated form of a statement. When we say something in an excited state, जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो एक्चुअली अगर हम लिटरल मीनिंग में देखेंगे तो वो सच नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको ऐसे बोलते हैं कि हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलता है उसके कंपैरिजन में, तो उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज़ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ. नाउ वर्स्ट डे, no one can actually say which is the worst day of your life because you have not really lived all the days. और ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा. हम ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में, अपनी यूजुअल लाइफ में यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. अभी there could be a worst day coming in your life. You could also use the word best here, and जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, you could just say this is the best day of my life, but you don't know that yet because you have not really lived your entire life yet. Now the next one, he is running faster than the wind. Now कोई हवा से तेज नहीं भाग सकता. It's just an expression to tell you that he is running very fast. हम ये भी कह सकते हैं और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट ही इज रनिंग फास्टर देन दी विंड. वो विंड से भी तेज भाग रहा है, वो हवा से भी तेज भागता है. कोई हवा से तेज नहीं भागता है. इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ अ स्टेटमेंट. इसीलिए ये एक हाइपरबोल है क्योंकि यहाँ पे हमने विंड का यूज़ किया है जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन, आई हैव रेड दिस बुक 100 times. जब हम कभी किसी बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बार पढ़ लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आई हैव रेड दिस बुक 100 times. बट एक्चुअली 100 times कोई किसी बुक को नहीं पढ़ता है, बस वो एक एक्सप्रेशन होता है ये प्रेजेंट करने के लिए दैट वी हैव रेड दैट बुक अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो बिकॉज वी हैव यूज्ड 100 times, दिस इज एन हाइपरबोल. माई ब्रदर इज़ स्ट्रोंगर देन आयरन. अब आयरन एक ऐसी चीज़ होती है जो मुड़ नहीं सकती, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो किसी का भी भाई हो या कोई भी इंसान हो, वो आयरन से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. लेकिन हमने यहाँ पे आयरन का यूज़ किया है विच अगेन मेक्स इट अ हाइपरबोल क्योंकि ये एक्चुअली रियलिटी में पॉसिबल नहीं है. बट हमने यहाँ एक एग्जैजरेटेड वर्जन यूज़ किया है सेंटेंस का टू प्रेजेंट कि हाँ मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट वन, आई एम ड्राउनिंग इन माई टीयर्स. नाउ फॉर समवन टू ड्राउन, किसी को कोई नदी में तैर रहा है और उसके बाद वो डूब जाता है, दैट इज़ पॉसिबल. लेकिन किसी को डूबने के लिए बहुत एक पानी का लेवल चाहिए होता है. सो कोई अपने टीयर्स में नहीं डूब सकता. ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है ये प्रेजेंट करने के लिए दैट द पर्सन इज वेरी सैड एंड ही इज़ बिन क्राइंग अ लॉट, बट दैट डजंट मीन दैट वो अपने टीयर्स में डूब सकता है. सो हमने एक ऐसे एक्सप्रेशन प्रेजेंट किया जो एक्चुअली सच नहीं हो सकता, बट हमारे लिए वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहा है इस चीज़ का कि वो जो इंसान है जिसने ये बोला है वो बहुत ज़्यादा दुखी है. सो ड्राउनिंग इन माई टीयर्स मेक्स इट अ हाइपरबोल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.
Now let's see the next one. So the next one is alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of the same sound or syllable at the beginning of two or more words. Now what is a syllable? Syllable is when certain alphabets together make a sound, that is called a syllable. How you pronounce an alphabet, that's called a syllable at the beginning of two or more words. Now you have to focus on the word two or more. Now it could be present in two या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. Now let's just see some examples to make it more clear. Peter picked a peck of pickled peppers. Now Peter picked a peck of pickled peppers. Now यहाँ पे हर जगह P सेम साउंड नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन जो P है वो रिपीट हुआ है. आप आवाज़ करके देखेंगे तो सेम साउंड आएगी. Peter picked per. So you cannot just check that there are the alphabets. You have to check if they are making the same sound. Now the next one. The fair breeze blew, the white foam flew. Now if you see for यहाँ यूज़ हुआ है और उसके बाद फिर F यहाँ यूज़ हुआ है, बट अगर आप एलिट्रेशन काउंट करेंगे तो एलिट्रेशन में ये वाला F भी काउंट होगा, बिकॉज एक सेंटेंस में ये 3 बार रिपीट हुआ है साउंड. नाउ यहाँ पे 2 एलिट्रेशन है, एक तो F और फिर दूसरा B, ब्रीज ब्लू. नेक्स्ट, Alice ate all of the apples in the afternoon. Alice ate all apples afternoon. So alliteration. Now the next one. The candy was killing my cavity. Now this you have to focus on because यहाँ पे अब आप आवाज़ करके देखो. कैंडी में जो सी है वो क की आवाज़ कर रहा है. सिमिलरली किलिंग में भी क की आवाज़ आ रही है एंड कैविटी में भी क की आवाज़ आ रही है, सी की आवाज़ नहीं आ रही. सो इफ़ यू काउंट द एलिट्रेशन, यहाँ सी और के दोनों काउंट होंगे. नेक्स्ट, शी हैप्पीली हेल्प्ड द होमलेस हेल्प्ड हैप्पीली. alliteration. So alliteration is one of the easy ones. I hope you understood it. Next, let's move on to the next one. So let's move on to the next one, oxymoron. So what oxymoron is, when you deliberately use two contradictory ideas. So जब दो contradictory ideas, जैसे कि हमने लिखा living, death. Living comes from life, right? Living comes from life. जब आप लाइफ और डेथ को एक ही जगह कंपेयर कर रहे हो तो एक ऑक्सीमोरन क्रिएट होता है. इसको हम एक लिटरेरी डिवाइस होती है पैराडॉक्स, वो भी कहते हैं. जब दो चीज़ें जो बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के वो साथ में लाई जाती हैं तो वो एक पैराडॉक्स क्रिएट करती हैं. और जो ये फिगर ऑफ स्पीच होती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ओनली चॉइस. नाउ चॉइस का क्या मतलब होता है? जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं किसी चीज़ के और आप उसमें से एक चीज़ चूज़ करते हो तो वो आपकी चॉइस होती है. लेकिन जब आपके पास एक ही चॉइस है तो उस चॉइस का मतलब क्या है? वो चॉइस नहीं हुई. सो दो ऑपोजिट चीज़ें, ओनली वन चॉइस जिसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. सो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के और इसीलिए ये एक ऑक्सीमोरन है. नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल होता है जब कोई चीज़ सच्ची में वहाँ प्रेजेंट नहीं होती. लाइक आप आजकल देखते होंगे वर्चुअल वीडियो गेम्स होते हैं जिसमें आपको ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो लेकिन आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते. तो वर्चुअल होता है जो रियल नहीं है और रियलिटी है जो रियल है. तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है. थर्ड,
साइलेंट स्क्रीम, साइलेंट होता है जब कोई आवाज़ नहीं हो रही होती है, और स्क्रीम होता है जब इंसान चिल्ला रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। ग्रोइंग स्मॉलर, ग्रोइंग हम कब बोलते हैं? व्हेन समथिंग इज ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब वो बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है और वो छोटा हो रहा है, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। दैट मेक्स इट एन ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट, हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज़ को बोला जाता है? जब कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, जिस पे अगर आप बैठे हो या आपने उसको टच किया तो आपको बहुत सॉफ्ट और ऐसी कुशनी फीलिंग आती है, उसको दबाने की फीलिंग आती है। लेकिन जब हम वो हार्ड है, वो दब नहीं रहा है, तो वो हार्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए एक ऑक्सीमोरॉन होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।